Yeah, now the session is going to be recorded and sending you PDF file. Yeah, Neetu madam, Imran ji, can you respond me? Is it visible? Yes, sir. Yeah, okay, okay. I will take a class of only 10 minutes, not more than 10 minutes. But here, the session is going to be recorded, and what I want to tell you, it's a poem Tintanabe, and here you find the original text. Already I told you what is the importance of this poem, Tintanabe. You find that the lines written a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि what is Wye? Wye is the name of the river. W-Y-E. Wye is the name of the river. R-I-V-E-R. Second important point, uh, the poem was composed in 1798. When was it composed? It was composed in 1798 when Wordsworth revisited this place. Wordsworth revisited this place in 1798, and first time he visited this place in 1793. Already I told you that Tinton Abbey is what? Tinton Abbey is a beautiful natural place covered with shadowy trees, thick forest where a river Wye passes through it, and it's a shrine, it's a sacred place in the eye of whom? In the eye of William Wordsworth. So, what did he say in the first 20 or 23 lines? You will come to know Wordsworth tells about the external beauty of nature. What beauty of nature? External beauty of nature. And here you find 5 years have passed, 5 summers with the length. So you here find the duration. What the duration? 5 years. Why there is the mentioning of the 5 years? I told you कि 5 years is, you find here 5 years because Wordsworth visited that place for the first time in 1793, and after a gap of 5 years he revisited that place, and that was 1798. तो उन्होंने कहा कि 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं, 5 समर्स, 5 गर्मियां जा चुकी हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी सर्दियां गुजरी हुई है। लॉन्ग विंटर्स क्यों? क्योंकि यूरोप में या इंग्लैंड में जो विंटर होता है वो काफी लंबी होती है। दिस इज वाई ही यूजेस लॉन्ग विंटर्स। एंड अगेन आई हियर, और मैं दोबारा यहाँ सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? वर्ड्सवर्थ कहते हैं एंड अगेन आई हियर व्हाट do I hear? And why again? Because for the first time he visited that place in 1793, and after a gap of 5 years he revisited that place, and he says that and again I hear. Here auditory image. What does he hear? He hears these waters that is falling down, that is rolling. And if the water is rolling or falling down, what does it mean? It means that the water is coming, you can say कि from mountain, वहां से वाटर रोलिंग करता हुआ लुढ़कता हुआ आ रहा है। कहाँ पे? फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, पर्वतों के बीच में जो स्प्रिंग्स है। स्प्रिंग्स यहाँ पे किसका? झरना, या जो वाटर का स्रोत पर्वतों के बीच से है, वहां से वाटर जो है क्या कर रहा है? रोलिंग करता हुआ आ रहा है। तो इट शोज द क्लोज ऑब्जर्वेशन। एंड जब वाटर वहां से रोलिंग करता हुआ आएगा तो नेचुरली है कि
देयर विल बी सम स्वीट साउंड, जो हम कहते हैं कल कल की ध्वनि। तो वही वर्dsworth कहते हैं आई हियर, मैं सुनता हूँ। व्हाट डू आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो पर्वतों के बीच में झरने की शक्ल में जो वाटर है वह रोलिंग करता हुआ आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? विद अ स्वीट इनलैंड मरमर। इनलैंड का मतलब धरती पर उतर रहा है, मरमर का मतलब साउंड है, लेकिन कैसा साउंड है? स्वीट साउंड है। So Wordsworth find sweet sound. Wordsworth hears melodious sound in falling water, and this water is coming from mountain spring with a sweet inland murmur. Murmur refers to what? Murmur refers to figure of speech onomatopoeia. And this murmuring means, what do you mean by murmuring? Murmuring means falling of the water. He here says once again. I think you came to know it ki what Wordsworth. Wordsworth is presenting the external beauty of nature. Already I told you कि इस पोयम में जो आपको मिलेगा एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फिलोसफिकल। वर्dsworth अभी अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वही वो प्रेजेंट कर रहे हैं। Then he says with a sweet inland murmur, once again do I behold. ऐसा लगता है एक बार मैं दोबारा behold करता हूँ। behold का मतलब प्यार भरी नजरों से देखना, वो जो है बहुत काफी कुछ जो है ध्यान मग्न होकर के beholding कर रहे हैं। these steep and lofty cliffs, इन चट्टानों को, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, और जो ये लॉफ्टी जो ऊंची ऊंची जो क्लिफ्स है और जो ये स्टीप है, इनको वे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्लिफ चट्टानों को, कौन सी चट्टानों को? जो वहां पर उनको नजर आ रही है। और वो चट्टानें कैसी हैं? स्टीप है और लॉफ्टी। लॉफ्टी ऊंची, ये जो ऊंची क्लिफ्स है, जो ऊंची रॉक्स हैं, और जो साथ ही साथ स्टीप है। और स्टीप का सेंस क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिकनी जो चट्टाने हैं वह उनको जो है देख रहे हैं। स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स विच ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, विच जो कि ऑन अ वाइल्ड, सेक्लूडेड माने आइसोलेटेड, करे इस पूरी जगह पर ऐसा लगता है, यह पूरी जंगल की जो सीन है जहाँ पे केवल मैं अकेला खड़ा हूँ और कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। सीन इम्प्रेस, यह खूबसूरत तस्वीर मुझे प्रभावित कर रही है। और एंड व्हाट अदर थिंग्स? थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, और यह मेरे अंदर और और जो है क्या कर रही है? सेक्लूजन का सीन ला रही है। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब आइसोलेशन। ऐसा लग रहा है कि आई हैव सीन दीज पिक्चर्स अर्लियर, एंड हियर when there is no one, I am standing alone in this beautiful place where there is open sky, where there is greenery. I find myself alone and I behold these beautiful objects of nature. And he says here, thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. और ऐसा लगता है जैसे जो है लैंडस्केप, धरती पर ये जो चट्टाने हैं ये किस क्या कर रही है? विद द क्वाइट, विद क्वाइट को मतलब शांत, ऑफ द स्काई, आसमान से। ऐसा लगता है कि धरती की जो ये चट्टाने हैं ये जो है शांत आसमान से मिलना चाहती। दिस इज अनदर पिक्चर एंड वी कैन फील इट। We even see, if you go where any hill area, you will find that कि कितना ऊंची ऊंची चट्टाने, and it seems that कि those steep and lofty cliffs are ready to touch the sky. So you only find the external beauty, nothing mystical, nothing you can say any pantheism here. द डे इज कम अगेन, वर्ड्सवर्थ सेज कि द डे इज कम, वह दिन दोबारा आ चुका है। व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मुझे दोबारा, रिपोज माने रेस्ट, जब मुझे रेस्ट करने का एक मौका मिलेगा। REPOS, रिपोज माने रेस्ट। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज here under this dark sycamore. Sycamore is the name of a tree that is a shadowy tree. और कह रहे इस जो है साइकामोर वृक्ष के नीचे मुझे कुछ समय
आराम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे खड़े होकर या आराम करते हुए एंड व्यू, मुझे जो नजारा नजर आ रहा है, व्यू का मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, दीज प्लॉट्स, इन खेतों को, ऑफ कटेज ग्राउंड, बिल्कुल जो है, जो वहां पे कॉटेज है, कॉटेज का मतलब क्या, कुटिया, जो कुटिया है, उस कुटिया के जो ये ग्राउंड, कुटिया, जो एक फील्ड में जो एक कुटिया है, उस कुटिया के पास से बिल्कुल हरियाली शुरू होती है और ओपन फील्ड को का नजारा मैं देख पा रहा हूँ। दीज आर्चर टफ्स, ये जो बगीचे हैं, इनको भी मैं महसूस करता हूँ, देख रहा हूँ। विच एट दिस सीजन, ऐसा लगता है जैसे इस सीजन में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, उनके जो फल है वे कच्चे हैं। अनराइप, अनराइप का मतलब कच्चा, रा माने कच्चा, अनराइप का मतलब वही, अगर पके हुए, रा, रा एंड राइप, रा का सिनोनिम, अनराइप। So he just only tells what, he only tells the external beauty of nature, and what does he tell? He tells, I see this, I see that, I find this, and I find that, which at this season with their unripe fruits among the woods and copses lost themselves। और वे जो कच्चे जो फल हैं, वे हरे रंग के हैं, और वे जो है उन पत्तियों में या झाड़ियों में, या जो घने पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसमें खो जाते हैं, क्योंकि पत्तियां भी हरी हैं, इसलिए कहते हैं एमंग द वुड्स, उन लकड़ियों में, एंड द कॉप्सेस, और जो झाड़ियां हैं, लॉस्ट देमसेल्फ, वे अनराइप फ्रूट्स खो जाते हैं। नॉर विद देयर ग्रीन एंड सिंपल ह्यू, ह्यू माने कलर, यार ऐसा नहीं है कि वे केवल अपनी हरियाली की वजह से या इसी कलर की वजह से डिस्टर्ब द वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप। समटाइम्स इट सीम्स कि ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही, कह रहे हैं कि केवल कलर की वजह से, हरियाली की वजह से ऐसा नहीं लगता कि ये जो हरे भरे खेत खलिहान है, मुझे कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब का मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खो दिया हूँ, या मुझे कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। फिर ही सेज वंस अगेन आई सी, एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, दीज हेज रोज, कैसे, हेज माने झाड़ियां, रोज का मतलब पंक्ति में, कैसे ये झाड़ियां जो है पंक्ति में लगी है। हार्डली हेज रोज, इनको मुश्किल से झाड़ियां कहा जा सकता है। लिटिल लाइन्स, और वे एक कतार में है। ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और ऐसा लगता है जैसे एक ऊर्जा का संचार करती है, रन वाइल्ड। और यह पूरे जो है जंगल में आप देखेंगे कि इस तरह का नजारा दिखाई पड़ सकता है। दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, ये जो चारागाह है, ग्रीन टू द वेरी डोर, घर के बिल्कुल दरवाजे से ही ये शुरू हो जाते हैं। ग्रीन टू द वेरी डोर, इसकी हरियाली ये शुरू हो जाती है, टू द वेरी डोर एंड रीड्स ऑफ स्मोक, और ऐसा लगता है जैसे धुएं की कोई माला, रीड्स का मतलब माला, स्मोक का मतलब धुएं की कोई माला जो है उठ रही है। कहाँ पर, सेंट अप जा रही ऊपर की ओर, इन साइलेंस, चुपचाप, फ्रॉम अमंग द ट्रीज, इन पेड़ों के बीच से, विद सम अनसर्टेन नोटिस, और ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई उस पर नोटिस नहीं कर पा रहा, विद सम अनसर्टेन नोटिस, एज माइट सीम, वे दिखाई पड़े। इट मीन्स कि अगर उन जंगल के बीच से कोई अगर धुआं उठ करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो इट मीन्स दैट कोई ना कोई हर्मिट या सन्यासी उस जंगल में है, या तपस्वी टाइप का है जो तप कर रहा होगा। तो पूरा का पूरा नेचुरल एटमॉस्फेयर। एंड व्हाट डू यू फाइंड, यू फाइंड steep and lofty cliffs. You find falling up the water that rolls down from their mountain spring, and with a sweet inland murmur. And you find greenery, you find hedge, you find unripe fruits, you find orchard, you find cottage. So these are the objects, natural objects, and you find that these objects, he only tells what, the external beauty where he has gone, how how the place appears, how the place looks, yeah, what does he find there. Then he gave the example, once again I got the time to stay there to behold these objects, because 5 years ago I visited that place. So these things. Half sportive would run while these pastoral farms green to the very door, and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees। अरे जो धुएं की माला है वह ऊपर की ओर जा रही है, with some uncertain notice, और ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है।
एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट dwellers। और ऐसा लगता है जैसे कुछ जो है वैग्रेंट ड्वेलर्स मतलब यहाँ सन्यासी लोग या कुछ बंजारे किस्म के लोग इन द हाउस लेस वुड्स, जिनके पास घर नहीं है, वे जिन जो जंगल को ही अपना घर बना करके रहते हैं। आर ऑफ सम हर्मिट्स, अथवा कुछ सन्यासी जो केव गुफाओं में है, वेयर बाई हिज फायर, और जहाँ पे वे आग जला करके द हर्मिट सिट्स अलोन, उस आग के पास वे हर्मिट्स अकेले बैठे हुए हैं। इसका मतलब या तो ये जो धुआं उठ रहा है बाग बगीचों के बीच से, या तो कोई जो है तपस्वी तप कर रहा है, या तो कुछ बंजारे किस्म के लोग जिनका अपना कोई घर नहीं होता, वे जो है उस जंगल में है और वे वहां पे लगे हुए हैं। So you find these things. So what I want to say, I have taken only 20 lines. You have to memorize. You don't have to feel anything ki something, but you have to go with these points. Because I have to go somewhere. This is why I have taken this. Sudhir ji is saying कि साउंड नहीं आ रही क्या? क्या साउंड रियली में नहीं आ रही है? मे आई नो? सर आपकी या सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर इसमें जो हर्मिट दिखाया है कि हर्मिट बैठे हुए हैं, तो सर हाँ। ये तो क्रिश्चियन लोग थे ना, तो क्रिश्चियन लोग हर्मिट कैसे हो गए? और फिर वो धुआं नहीं कैसे, हवन कैसे कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में हर्मिट का या उसका से उन्होंने कहा मे बी, इन्होंने कहा दो लोग है ना, देयर इज अ वैग्रेंट ड्वेलर, ही एक्सपेक्ट दैट कि सम वैग्रेंट ड्वेलर्स आर सम हर्मिट्स केव। सो इफ यू गो विद दिस पॉइंट कि ही वाज अ क्रिश्चियन एंड हर्मिट कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर्मिट नहीं हो सकते। एट नेचुरल प्लेसेस यू विल कम टू नो द पीपल कैन बी देयर, and he is using this and hermit, and that particular term hermit we are just taking फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ले रहे हैं, इस वजह से चीजें हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे इंडियन फिलोसफी से और इंडियन रिचुअल से, तो उसमें वो चीजें नजर आती थी। ऐसा नहीं कि हर्मिट का मतलब केवल इंडियन सेंस के जो साधु तपस्वी, ये तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं। देयर मे बी एनी वन एनी पर्सन हु वॉज इन द फॉरेस्ट एंड जस्ट डूइंग देयर जॉब, तो नथिंग एट ऑल, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं कि वो क्रिश्चियन से उसका उसका ईस्टर्न फिलॉसफी से भी उनका हो सकता है प्रभावित रहे। ओके, ओके, तो थैंक यू जस्ट सर।